सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। हैवी बाइक्स का शौक शायद पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में यंगस्टर्स में पाया जाता है। आज आपको लेकर आए हैं डीसी मोटर बाइक शो में। इस शो के अंदर ना सिर्फ आपको हैवी बाइक्स की वैरायटी मिलेगी, बल्कि चाहे हॉट रॉड्स हो, चाहे हैवी बाइक्स हो, चाहे रेसर्स हो या फिर चाहे डर्ट बाइक्स हो। इसके अलावा भी हर किस्म की हैवी बाइक्स का मजा यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आइए इस एग्जीबिशन का आज मजा लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर यानी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी हैवी बाइक्स का कितना क्रेज मौजूद है। बाइक्स के हवाले से अमेरिका की चंद मशहूर तरीन ब्रांड्स में से एक है हार्ली डेविडसन और आज उसी के स्टॉल के ऊपर मैं मौजूद हूँ। देखती हूँ कि यहाँ पर बाइक्स कैसे चलाई जा सकती है। इस वक्त जो नई ब्रांड इनके पास मौजूद है वो है फैट बॉय, तो मैं उसे ट्राई करने वाली हूँ। मेरे साथ स्टीव मौजूद है। हेलो स्टीव, हाउ आर यू? आई एम गुड, नाइस टू मीट यू। So I'm a very new person for the bike riding. I don't know how to ride a bike. And that's fine. But you're twisting there, that's the throttle. That's like the gas pedal in your car. So you roll it towards you to give you gas, okay? Okay. So roll it towards you a few times just so you see what it feels like. Just give it a few twists, okay? That'll give it gas, okay? That's like pressing the pedal in your car. All right? The clutch is over here, right? You want to squeeze that all the way in towards the bar, all right? Squeeze it all the way in, all the way, and hold it, okay? Okay. Hold it while you shift gears, and then you're going to ease it out, okay? So you're going to ease it out real slow, okay? So try it once. Just like that. Perfect. Okay. Okay? So try it again. Squeeze it in a little bit and ease it back out. All right? Okay. So when you squeeze it in, we're going to shift gears down by your feet. All right? So you're going to hold that in. You're going to press down on that to go down, and then use your heel to go up. So give it a good press. Okay? It's in first gear, so you can't go down any farther. Try pressing with your heel on that. All right, feel that click? All right, once you feel the click, put your foot back immediately back on the footboard, okay? So you're just going. And then I can leave this? Then you ease that out. Okay. You want to give it a little gas as you ease it out, okay? Okay. A little bit, okay? Make sense? A little. It will when it's running, all right? Okay. All right, now we're going to start it. It's going to be a 3-part process. I'll do the first part. You're going to do the last 2, okay? Okay. All right, so for the first part, we're going to turn the motorcycle on, electronics, right? And then I'm going to get it in neutral for you. That green end right there, that tells you you're in neutral. Okay. All right? Okay. The next thing is we're going to get the motorcycle ready to start by clicking the run button. So should I click it? Push it down. Yeah, it's not going to start yet. The next one you press is going to start the motorcycle, okay? Okay. You ready? Yes. All right. You're going to press and hold it down until it turns over and starts up, then you're going to let it go. Press it down. There you go. Perfect. Started. Okay. All right. Now I want you to your wrist up and flat a little bit. Yeah, there you go. Now grab on. Now roll it towards you. This one? Just roll it towards you like that. That's like pressing the gas. Okay. All right. It sounds very nice. Yes. That's the Harley sound. All right. Yes. Okay. So I want you to do that a few more times, just so you see what that feels like. All right. You're going to need to give it a little gas when you let this down, okay? Okay. All right. So now are you ready to put it in gear and go? All right. Squeeze this all the way in and hold it. Press down on that. Give it a good press. You're only going to press. There you go. Now put your foot back on the footboard. And now ease that out and give it a little bit of gas. You're rolling. Yes, it's good. Right now you're rolling down the road. That's the road speed. So if you're on the road, that's how fast you can travel. Is it fine? You're riding the Harley. Sound is really cool. Clutch in. Foot here. Down. Ease it out. A little bit of gas. Awesome. So you're in second gear now. Okay. All right. Now we're going to go down to first. So clutch in. Push down that. All right. Okay. Ease it out. Get it. Thank you. Okay, now how will it turn now? Now you can shut it down. Squeeze that in. Okay. And then press this button right here and that'll shut it off. Press that. With the clutch? Okay. And you did it. Thank you. Thank you. You ever get off a horse? You can grab on the handlebars. Okay. And just swing your legs over. Okay? Stand down here. Ow. Ow, 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 ow. Okay. Thank you. Thank you so much. Very good, very good. Thank you. Nice job. Thank you. You can do it, drink for free, call collide. That's the
telling the truth with blood in the proof. We stacks with the spread love like a cruise. The lyrical genius with the R&B messiah and the roof. We set on fire. But as long as the money is jumping, we ain't concerned. And everybody with somebody was there with their hands in the air, bringing in the new year. Yeah. अमेरिका का चाहे जो भी कोना हो, चाहे जो भी शोभा हो, लेकिन पाकिस्तानी कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी ज़रूर दिखाते हैं। एक ऐसी स्टॉल में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर लेदर जैकेट्स बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं और जो इसके ओनर हैं वो पाकिस्तानी है, सियालकोट से उनका ताल्लुक है। नुमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे अमेरिकन के अंदर पाकिस्तानी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। ये बिज़नेस आपने कब शुरू किया? Grandfather, 1948. My grandfather has started this business, and then my dad and I'm the third generation. तो आप पाकिस्तान में सिर्फ सियालकोट से ही सब चीज़ें मंगवाते हैं? जी बिल्कुल, सियालकोट में मेरे जो डैड हैं वो सारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ पर कैसा रिस्पांस मिलता है जब आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं? बहुत अच्छा। जब पूछते हैं कि वेयर इज मेड आउट ऑफ, तो हम पाकिस्तान से कहते हैं एंड दे लव इट। अच्छा, प्राइसेस क्या हैं? देखें क्योंकि ख़वातीन प्राइसेस पे ज़रूर जाती हैं, तो ये बताएं यहाँ जो प्राइसेस आपने रखे हुए हैं क्या वो दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर रेट्स पे देते हैं? About 20% less than the other brands, but still our prices, we keep our prices certain because of the cost. यहाँ पर क्या डिमांड कौन सी जैकेट्स की ज़्यादा की जाती है? सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल, waterproof textile because it's lightweight and it's rainproof. अच्छा, अभी इस वक्त यहाँ पर जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करें तो क्या पाकिस्तान में भी वही स्टैंडर्ड है? पाकिस्तान एक्चुअली दे आर मेकिंग गुड प्रोडक्ट और वो फॉलो कर रहे हैं एज फार एज वेस्टर्न कंट्रीज, जर्मनी, इंग्लैंड एंड यूएस, दे आर मेकिंग रियली गुड प्रोडक्ट एंड दे फॉलो। अच्छा, अगर पाकिस्तान से हम कंपेयर करें तो हैवी बाइक्स है, क्योंकि आप जिस एग्जीबिशन में हैं वो है ही मोटर बाइकिंग से मुतालिक, तो वहाँ पर क्या ये मार्केट उतनी ओपन है जितनी अमेरिका या दूसरे कंट्रीज? जी बिल्कुल। तो वहाँ पे लोग आपको किस तरह का फीडबैक देते हैं कि यही ब्रांड्स आप वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। एज फार एज कनाडा और न्यू मैक्सिको, वी एक्चुअली जस्ट हैव स्टार्टेड इन मैक्सिको, सो वी आर गेटिंग ट्रेमेंडस रिस्पांस फ्रॉम मैक्सिको, साउथ अमेरिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नौमान आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Come on. Nuggets on the wrist is just for shine. Somebody checking out the line. Catching guns for days to blow mind. Baby, it's so good, so worth to आई विश कि यहाँ पर मेरे जैसे लोगों के साइज़ की भी कोई बाइक्स हो। ये बाइक तो शायद मुझसे बहुत बड़ी है। इन बाइक से मुतालिक मजीद भी आपको बताएंगे और एग्जीबिशन में और भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि अभी तक आपको नहीं दिखाया है, लेकिन ये सब कुछ होगा इस ब्रेक के बाद। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सबके सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है बाइक के हवाले से क्रेज़। यहाँ पर मेरे साथ इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले महेश मौजूद हैं और उनके साथ आफी हैं जो कि ग्रीस से ताल्लुक़ रखते हैं। हेलो टू बोथ ऑफ यू, हाउ आर यू? Good, how are you doing? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे तो पहले हिंदी में बात करूँगी। ये बताएं कि आज के शो में कितना मज़ा आ रहा है और कितनी वैरायटी देखने को? बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंट वैराइटीज़ की बाइक्स हैं एंड दिस इज़ द शो वेयर यू कैन एक्सपीरियंस, और यहाँ पे बहुत अलग अलग बाइक्स आप देख सकते हैं एक साथ एक ही जगह पर। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास शो इन डीसी। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान या इंडिया में कंपेयर करें प्राइस रेट्स को, तो वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव समझी जाती हैं, ख़ासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ पर क्या ये चीज़ें चीप मिल जाती हैं? कंपेयर टू अमेरिका से कंपेयर करें तो यहाँ पे चीप नहीं है, लेकिन दे कैन अफोर्ड इट। और इंडिया पाकिस्तान में भी अगर गवर्नमेंट अलाउ करे तो दैट विल बी फन टू हैव दिस बाइक्स इन इंडिया एंड बट यहाँ पर एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा है। और आपके इंडिया में भी इतना ही क्रेज़ मौजूद है बाइक्स का? या बाइक्स का? यस डेफिनेटली। इंडिया में तो दे लव बाइक्स एंड बट वही है कि प्राइस पॉइंट की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, और मीन्स कस्टम्स और पता नहीं क्या क्या एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। Okay, now we'll talk to the gentleman who is from Greece. So, how do you find this exhibition today? Oh, it's exciting. There's lots of variety, lots of different bikes that you could try out, sit on. You know, whatever bike that you're into, classics or like hot rod kind of style, like Harley Davidsons or sport or street bikes. You know, they're all there's plenty of variation. Yeah. So, which bike you like the most for yourself? I like Suzuki. I got a Suzuki and I got a Buell. Buell is kind of like a Harley, but I love my Suzukis. So, do you find the prices of the heavy bikes in USA are more less than the comparison with your own country?
Yeah, I mean, I think, you know, sometimes they can be a little bit more expensive over here. I mean, obviously there's a lot more work. You know, the economy is different over here. So there is, you know, you work hard, you can afford these types of things. So yeah, there's a market for everything over here, and overseas it's a little bit different. You know, they got different brands and different prices. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. मैं इस बाइक को काफ़ी देर से चलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मजाल है कि ये 1 इंच भी हिल जाए। खैर, इस किस्म की बाइक्स का शौक सिर्फ अमेरिका के अंदर ही मौजूद नहीं है, बल्कि इन डर्ट बाइक्स का पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में फ़ैन क्लब मौजूद है, जिन्हें वहाँ पर ऑफ रोड बाइक्स कहा जाता है। इस्लामाबाद में कुछ ऐसे ही नौजवानों से आपको मिलवाती हूँ जो कि इन बाइक्स का क्रेज़ रखते हैं और शौकिया बहुत अरसे से इन बाइक्स का मज़ा भी ले रहे हैं। रेगुलर बाइक जो 125 होंडा 125 है, उससे हमने शौक़ को जो सा ना आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन वक्त गुजरते के साथ साथ जब हमने देखा कि ऑफ रोडिंग ट्रैक्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर वाई नॉट हम लोग जो सा ना ट्रेल्स को प्रमोट करें और ट्रेल को आगे लेकर आएँ। 12 जुलाई को हमने जो सा ना नांगा पर्वत बेस कैंप, फेरी मेडो से आगे व्यू पॉइंट लास्ट पॉइंट है इसका बेस कैंप का, वहाँ तक हम अपनी ट्रेल बाइक लेकर गए हैं। ये हमारी लास्ट मतलब फ़र्स्ट टाइम अचीवमेंट थी, फ़र्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग का जो सा ना वहाँ पर मोटरसाइकिल को लेके जाना था, और इट वाज अ ट्रिमेंडस अचीवमेंट फॉर अस। और इस सफ़र में जो है बड़ा अल्लाह ताला की बहुत सारी जगहें इतनी खूबसूरत और पाकिस्तान के अंदर जितनी ब्यूटी है, मेरा ख्याल है किसी और मुल्क के अंदर नहीं। कोशिश ये है हम खुद भी देखें और लोगों को भी ये बता सकें कि वो आएँ, हमारे मुल्क में आएँ इंटरनेशनली। और ये ट्रेल बाइक का जो एक स्पोर्ट्स अचीवमेंट है जो इंटरनेशनली है, ठीक है, और उसको अडॉप्ट करते हुए हम भी इसको मतलब चाह रहे हैं कि भी बाकी की कंट्री ये जो है ना इसको ट्रेल बाइक को जब एक स्पोर्ट एक्टिविटी बना चुके हैं तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते। इसी एक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए ऑफ रोड करते हैं, और ऑफ रोड का मज़ा मतलब सारे के सारे एंजॉय करते हैं और ट्रैवल करते हैं इकट्ठे। लेकिन इस सफ़र का मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ लोग मिलते हैं। जी राय साहब, आपके क्या तासुरात हैं? बस दिल में खुशी होगी कि हम पहले वो बंदे हैं जिन्होंने फेरी मेडोज़ पे बाइक लेकर आए हैं, वरना से पहले किसी बंदे ने न चरिंद न परिंद किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऊपर भी मोटरसाइकिल आ सकता है। यही बात है। नांगा पर्वत का आप नज़ारा देख सकते हैं। जी मलिक साहब, मज़ा आया आपको ड्राइव करके? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। हम अपनी टूल किट्स, बैग वगैरह, ये वो, इसमें सस्पेंशन सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि पहाड़ी, पानी, दरिया, पत्थर, हर चीज़ को हम क्रॉस करते हैं और हमें दुश्वारी नहीं होती। और हम मज़ीद हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की तरफ से हम अच्छे बाइकर और अच्छे हाइकर जो हैं ना वो सामने आए, और हमारी कोशिश ये है कि इसे हम इंटरनेशनल लेवल पे जितने हमारे खिलाड़ी हैं उसको हम आगे प्रमोट करें। बाइकर्स एंड हाइकर्स क्लब इस्लामाबाद। अगर मैं इस एग्जीबिशन में मौजूद हैवी बाइक्स नहीं चला सकती तो क्या हुआ, कम से कम ये बाइक तो मैं ज़रूर चला सकती हूँ। लेकिन पाकिस्तान में अब बड़ी तादाद में ऐसी लड़कियाँ शामिल हैं जो कि वो काम करने लगी हैं जो करने से कभी कभी लड़कियाँ बहुत डरती थीं। आपको ऐसी चंद पाकिस्तानी लड़कियों से मिलवाते हैं जो कि पैराग्लाइडिंग का शौक़ रखती हैं, और वो भी पाकिस्तान में रहते हुए। पहला दिन तो बहुत अच्छा था क्योंकि ग्राउंड पे ट्रेनिंग की थी, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक स्पिरिट था कि मैं उड़ सकूँ। It was fantabulous. I was flying in the air. कश्मीर के इलाके से लोग पैराग्लाइडिंग के लिए फ़्लाइट्स करते। पीर चनासी से एक पीक है, यहाँ खानपुर पे होती है पैराग्लाइडिंग, अस्तोर और उस साइड पर भी होती है, गिलगित की साइड पर होती है। स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रिस्पांस, हमसे तो हमेशा तकरीबन 10 से 15 लोग जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि पहले ये था कि ये चीज़ें इतनी कॉमन ही नहीं थी, अब जितना लोगों को पता चलना शुरू हो गया तो बेसिक रिस्पांस आ ही यूथ का रहा है और फीमेल्स का तो बहुत अच्छा आ रहा है। फ़्लाइट काफ़ी अच्छी गई मेरी, क्योंकि लड़के कुछ स्लिप भी हुए, गिरे भी सही, लेकिन मैं उनमें से वो थी जो सर्वाइवर कह सकते हैं कि मैं बच गई और मुझे कोई चोट वगैरह नहीं आई। अदरवाइज़ तो काफ़ी क्रैश लैंडिंग्स हुई थी। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करें, आप
बहुत इजी ले रहे हो तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप डर गए तो आप बस ऊपर जाके कुछ ऐसा करते हो कि आपकी गिरने का ख़तरा होता है, तो आपको काफ़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है इसके लिए। इसमें ये होता है कि आपने पीक से जंप करनी होती है ग्लाइडर पहनकर, उसके ज़रिए आप नीचे आते हैं। और इसमें बेसिकली इसके 3 सेशन होते हैं, एक थ्योरी सेशन होता है, एक ग्राउंड हैंडलिंग सेशन होता है और थर्ड वन जो है आपकी फ़्लाइट होती है। पहले दिन जो है थ्योरी वगैरह का बताते हैं, सेकंड डे ग्राउंड हैंडलिंग होती है, उसमें आपको ग्लाइडर को आपने बैलेंस करना होता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको ग्राउंड पे लाया जाता है, आपकी ग्राउंड पे ट्रेनिंग की जाती है, आपको बाकायदा सिखाया जाता है कि किस तरह उसको हैंडल करना है, रनिंग होती है। और कैसे आप लैंड करेंगे, आपको लैंडिंग टेक्निक्स बताते हैं, टेक ऑफ टेक्निक्स बताते हैं। जब आप इस काबिल होते हो कि आप पहाड़ पे जाके वहाँ से ऊंचाई से फ़्लाइट ले सको, तो फिर आपकी हो जाती है एक फ़्लाइट। DC मोटर बाइक शो बाइक्स के दीवानों के लिए शायद सबसे बेहतरीन प्लेस। यहाँ से मजीद भी बहुत कुछ आप जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वापस इस एग्जीबिशन के अंदर आ जाते हैं। एक स्टॉल के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं BMW को जो सुपरवाइज कर रहे हैं यहाँ पर मिस्टर बॉब, उनसे बात करते हैं। हेलो मिस्टर बॉब, हाउ आर यू? Fine, thank you very much. Tell us how much crazy people are about the heavy bikes in America. Only half of the market is really crazy about the heavy bikes. सिर्फ आधे लोग ऐसे होंगे जो बड़ी मोटरसाइकिलों के दीवाने हैं, उसी तरह जैसे एक बड़ी तादाद में लोग छोटी मोटरसाइकिलें पसंद करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो ताकतवर, तेज़ रफ्तार और खूबसूरत मोटरसाइकिलें पसंद करते हैं, मगर दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ऐसी बाइक्स के दिलदादा हैं जिन्हें बआसानी चलाया जा सके। Mix of all the motorcycles. What do you think that the craze which people have about the bikes, how it started and how the people are more involved now? Motorcycling has always been fun. मोटरसाइकिल हमेशा ही एक पसंदीदा सवारी रही है। लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मोटरसाइकिल चलाते हैं, मगर इनमें सर-ए-फ़हरिस्त फन या मज़े के लिए मोटरसाइकिल चलाना है। कुछ लोग रोज़ाना काम पर जाने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जो कभी मोटरसाइकिल पर काम पर नहीं जाते, बल्कि छुट्टी वाले दिन मज़े के लिए मोटरसाइकिल चलाते हैं। मोटरसाइकिल एक सस्ती सवारी है। अब तो खैर गाड़ियाँ भी कम पेट्रोल में ज़्यादा सफ़र करती हैं, मगर मोटरसाइकिल का अब भी अपना मज़ा है। इसी मज़े की वजह से मैं मोटरसाइकिल से काम पर जाता हूँ। मैं तो छोटे बड़े सफ़र के लिए मोटरसाइकिल ही इस्तेमाल करता हूँ। मैंने पहले भी मोटरसाइकिल पर अमेरिका भर का सफ़र किया था और इस साल फिर मैं यही करने जा रहा हूँ। मोटरसाइकिल चलाने वाले एक बड़े ख़ानदान की तरह हैं जो हर किस्म की मोटरसाइकिलें चलाते हैं और उन्होंने इनमें सरमायाकारी की हुई है। Well, they're all invested in that. One of the things that I think brings motorcycle to the top of the social scene more than anything else is that when people travel in cars. मुआशरे में मोटरसाइकिल को जो चीज़ मुनफरिद बनाती है वो ये है कि गाड़ी में तो लोग अंदर बैठे होते हैं, मगर मोटरसाइकिल सवार को हर कोई देख सकता है। Just 1600cc motorcycle, you know, the full luxury touring package. I have seen a bike which has 1600cc engine. So people usually have 1600 of engine for the car. How they can ride the bike which is having a 1600cc engine? Well, well, you know, the number size of the engine designates the physical size. अब इंजन की ताकत का अंदाज़ा मोटरसाइकिल के साइज से नहीं लगाया जाता। 20 से 30 साल पहले इंजन और मोटरसाइकिल के साइज में काफ़ी मुताबिकत थी, मगर अब तो छोटी मोटरसाइकिल का इंजन भी 1600 सीसी हो सकता है। इन दिनों हार्ले डेविडसन की ऐसी मोटरसाइकिलें हैं जो इंजन के हिसाब से बड़ी हैं, मगर BMW ऐसी बाइक्स बनाता है जिनका साइज छोटा होता है मगर वो ताकतवर हैं और इनका वजन भी कहीं कम होता है। ये ज़्यादा महफूज और माहौल दोस्त भी हैं। इनमें टेक्नोलॉजी भी मुख्तलिफ है। As well as a mindset in terms of what they want that motorcycle to do. Thank you so much, Mr. Bob. Thank you so much. Pleasure. Thank you. Thank you. All right.
बाइक्स तो शायद मेरे जैसे लोग नहीं चला सके, लेकिन जो कम से कम चीज़ कर सकते हैं वो ही है कि कम से कम इसका हॉर्न जरूर बजा दें। इस एग्जीबिशन के अंदर और तो बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन अभी आपको लिए चलूंगी कैलिफोर्निया, जहाँ पर इजी राइडर शो किया जा रहा है। Why Harley Davidson? You know what? Harley Davidson, America. When you see bikers, a lot of people, it's a stereotypic that everybody's a gang member, but that's not true. बाइक चलाने वालों के बारे में कुछ लोग ये समझते हैं कि बाइक चलाने वाले किसी गैंग के मेंबर्स होते हैं या ये गलत किस्म के लोग होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइक चलाने वाले भी हमारे माशरे के आम लोगों की तरह होते हैं। Bikers have got a bad rap saying that everybody's bad, but there's a lot of good people in the biker family. इनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो अपने रोजमर्रा के काम निपटाने के बाद एक मशगले के तौर पर बाइक चलाते हैं। इनमें से बहुत से लोग फलाही कामों में भी हिस्सा लेते हैं। बाइक चलाने वालों के बारे में पहले गलत तासुर काफी आम था, मगर अब ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। Rowdy guy. It's a lot of love, fun, and have a good time and express your freedom. डीसी मोटर बाइक शो में ना सिर्फ आपने हैवी बाइक्स की मुख्तलिफ वैरायटीज देखी, बल्कि कुछ को आपने मुझे ट्राई करते हुए भी देखा। शायद बाइक्स पसंद करने वालों के लिए ये एग्जीबिशन, ये शो ऐसा था जिसे उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अगले शो में एक नई जगह, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।